عزیز و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج آپ لوگوں کی خدمت میں سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 15واں حصہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو حضرات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مشرک سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور آپس میں صلاح کرنے لگے، محمد دیوتاؤں پر زیادتی کر رہا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ وہ ہمارے دین کو مٹانا چاہتا ہے، اس سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے؟ محمد دیوتاؤں کا اپمان کرتا ہے، وہی جو ہمارے اپاس ہیں، ہم سے پہلے لوگوں کے بھی اپاس ہیں۔ کیا محمد ہم کو مورخ سمجھتا ہے؟ جو مورتیوں کو توڑ دینے کو کہتا ہے، ان مورتیوں کو جن کے لیے عرب کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اور آ کر ان کو سجدے کرتے ہیں اور کعبہ کی طرح ان کا طواف کرتے ہیں۔ کیا محمد چاہتا ہے کہ سارا عرب ہم پر ہلہ بول دے، یا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بائیکاٹ کر دے اور ہمارے یہاں آنا جانا چھوڑ دے، کہ سارا بیاپار ٹھپ ہو جائے اور ہم دانے دانے کو ترسنے لگیں؟ بہت دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ انت میں طے ہوا کہ کچھ لوگ ابو طالب کے پاس جائیں، ان سے بھتیجے کی شکایت کریں اور کہیں کہ آپ محمد کو روک دو، وہ نہ ہم کو کچھ کہے، نہ ہمارے دیوتاؤں کو، نہ اس کو ہمارے دھرم کی کوئی واسطہ اور نہ ہم کو اس کے دھرم سے کوئی واسطہ۔ قریش کے کچھ سردار ابو طالب کے پاس گئے۔ وہ تھے حرب کا بیٹا ابو سفیان، ربیعہ کا بیٹا عتبہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، وائل کا بیٹا آس اور ہشام کا بیٹا عمر۔ ہاں، وہی عمر جس کا اپ نام ابو الحکم تھا اور جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے۔ عمر کا نام ہی ابو جہل ہے۔ یہ سب لوگ مل کر ابو طالب کے پاس گئے اور اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے انہیں تسلی دی، بڑی نرمی سے بات چیت کی اور سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ دن گزرتے رہے اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم شرک اور مورتی پوجا سے روکتے رہے اور کیول ایک اللہ کی عبادت پر ابھارتے رہے۔ دھیرے دھیرے اسلام قبول کرنے والوں کا ایک جتھا تیار ہو گیا۔ اب تو مشرک بہت گھبرائے، اگر محمد سفل ہو گیا، اس کا دھرم پھیل گیا اور ہر اور اسلام کا بول بالا ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ تب تو ہماری شامت آ جائے گی، پیارا وطن اجڑ جائے گا اور ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ گول مول بات ٹھیک نہیں، اب کوئی فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب، آپ ہمارے بڑے ہیں، دل جان سے پری ہیں، ذرا بھتیجے کے بارے میں انصاف کیجیے نا، اس سے کہیے ہمارے دیوتاؤں کو برا نہ کہے، ہمارے دین میں عیب نہ نکالے، ہماری عقل اور سوجھ بوجھ پر چوٹیں نہ کریں اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ نہ کہیں۔ ہاں تو آپ اسے سمجھا دیجیے، ورنہ بیچ سے ہٹ جائیے، ہم خود اس سے نپٹ لیں گے۔ آخر آپ بھی تو اس کی باتوں سے بیزار ہیں، آپ کو بھی چین مل جائے گا۔ ابو طالب سے کچھ بن نہ پڑا، مجبور ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابو طالب بولے، بھتیجے، یہ قوم کے سردار آئے ہیں، انہیں تم سے کچھ شکایت ہے، یہ چاہتے ہیں کہ نہ تم ان کے دیوتاؤں کو کچھ کہو اور نہ یہ تم کو اور تمہارے رب کو کچھ کہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا، چچا، جو چیز ان کے لیے ادھک بھلی ہے، کیا میں اس کی اور بلانا چھوڑ دوں؟ ابو طالب، وہ کیا چیز ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کہتا ہوں، زبان سے کیول ایک واک کہہ دیں، اگر یہ تیار ہو جائیں تو پورا عرب ان کے ادھین ہو جائے گا اور ساری دنیا ان کے پیر چومے گی۔ ابو جہل زور سے چلایا، تیرے باپ کی قسم، وہ واک کون سا ہے؟ اس جیسے 10 واک ہم سے سن لے۔ فرمایا، کیول لا الہ الا اللہ
अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं। कह दीजिए, खुदा के लिए केवल ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। इज्जत और कामयाबी आपके कदमों में होगी। रब की रहमतों की बारिश आप पर होगी। दुनिया में भी खुश रहेंगे, आखिरत में भी निहाल होंगे। यह सुनते ही सब तिलमिला उठे, गुस्से से चेहरे लाल हो गए, नफरत से गर्दनें फिर गईं और वे वह यह कहते हुए चल दिए, तेरे मुंह में खाक, देख तेरी कैसी मिट्टी खराब करते हैं हम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश तेजी से फैल रहा था। समाज के भले लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो रहे थे। यह देखकर मुशरिक लोग बड़े तिलमिलाए, उनके सीनों पर सांप लौटने लगे। एक अल्लाह की इबादत सरासर बुतों का अपमान था। इस्लाम की इज्जत कुफ्र के लिए जिल्लत थी और मुसलमानों की सरबुलंदी अधर्मियों के लिए खतरे की घंटी थी। अधर्मी गुस्से से बेकाबू हो गए। उन्होंने कस्में खाईं, अब हम मोहम्मद के लिए नंगी तलवार हैं। जहाँ पाएंगे सताएंगे और जिस तरह हो सकेगा दिल दुखाएंगे। जिस्म को भी जख्मी करेंगे, रूह को भी छलनी करेंगे और उसके दीन को मिटा कर छोड़ेंगे। उन्होंने अपने शायरों और बादशाहों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़का दिया। वे आपको गालियाँ देते, आप पर तोहमतें लगाते, अपनी शायरी में आपकी हंसी उड़ाते, लोगों में बदगुमानियाँ फैलाते, आपकी अक्ल और इरादों पर हमले करते। कोई कहता यह तो जादूगर है, कोई कहता इस पर तो जादू का असर है, कोई कहता इसको शोहरत की लालसा है। एक दिन कुछ मुशरिक सरदार काबा में जमा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातचीत करने लगे। अरे मोहम्मद तो कहता है हम लोग मर जाएंगे तो फिर ज़िंदा किए जाएंगे और अपने किए का हिसाब देना होगा। अच्छे कामों का अच्छा बदला पाएंगे और बुरे कामों का बुरा। अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, बुरा काम करेंगे तो जहन्नम में चलेंगे। फिर उन्होंने सोचा ज़रा मोहम्मद को बुलाएं और उससे कुछ बहस करें। अगर वो अपनी बातों में सच्चा होगा तो दलील देगा और अगर झूठा होगा और सिर्फ दावा ही दावा करता होगा तो हमें हक होगा कि जितना चाहें सताएं और इसमें हम बिल्कुल बेकसूर ठहरेंगे। ना किसी को हमें मलामत करने का हक होगा और ना पूछ कुछ का। उन्होंने तुरंत एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ाया। आदमी पहुंचा तो आपको कुछ उम्मीद हुई। आपने सोचा कि शायद उन पर हक खुल गया है, शायद अब वे ईमान ले आएं। यह सोचकर आप बड़ी बेताबी से उसकी ओर बढ़े, लेकिन वहाँ तो मामला ही कुछ और था। वहाँ तो वही दिल दुखाने वाली बातें थी, वही जिद और नफरत की अदाएँ थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही कहा कि हम तो जानते नहीं अरब में कोई ऐसा आदमी हुआ हो जिसने तुम्हारी तरफ अपनी कौम को तंग किया हो, तुम्हारी तरह अपनी कौम को तंग किया हो। तुमने सारे हमारे धर्म में दोष निकाला है, हमारे देवताओं को बुरा भला कहा है, हमारे बाप दादा को पथ भ्रष्ट कहा है। यही क्या पूरी कौम को तितर बितर कर दिया है। अब तुम खुद ही बताओ कि क्या बात रह गई जो तुमने नहीं की। लेकिन सुनो, अब भी हम तुमको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं और दौलत इज्जत शोहरत सब देने के लिए तैयार हैं। दौलत की तमन्ना हो तो बताओ, तुम्हारे कदमों में दौलत के ढेर लगा दूं। शोहरत की तमन्ना हो तो बताओ, तुमको अपना सरदार बना ले। और अगर कहीं दिमागी मर्ज या भूत प्रेत का असर है तो हम अच्छे से अच्छे इलाज का इंतज़ाम करें। इलाज तुम्हारा होगा, पैसा हमारा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल और नीयत पर यह कितना ज़बरदस्त हमला था। आपको बड़ा शौक़ हुआ। फरमाया, मुझ में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मुझको माल और दौलत की भी तमन्ना नहीं है, शोहरत या बादशाहत की भी तमन्ना नहीं है। मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, उसी ने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें होशियार कर दूँ, बुराई का बुरा अंजाम बता दूँ और भलाई का भला अंजाम भी सुना दूँ और चाहो तो रब से मिला दूँ।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का क्या असर हुआ? जहालत और अज्ञानता की रग और कड़क उठी। उनमें एक शोर मच गया। जो कुछ मुंह में आया बकने लगे, उल्टी सीधी मांगें भी करने लगे। बोले, अगर सचमुच तुम अल्लाह के रसूल हो और उसने तुम्हें हमारी रहनुमाई के लिए भेजा है तो इन मांगों को पूरा करो, फिर हमें यकीन आएगा और हम तुम्हारी बातें मानेंगे। किसी ने कहा, अपने रब से कहो कि हमारे लिए पानी का एक स्रोत जारी कर दे, स्रोत भी ऐसा जो जमजम से भी मीठा हो, और जैसे शाम, सीरिया और इराक में नहरें बहती हैं हमारे यहाँ भी बहने लगें। किसी ने कहा, अगर नबी हो तो अपने रब से कहो कि तुमको बागों और महलों में रखे, सोने चांदी के बहुत से खजाने दे दे ताकि ऐश की ज़िंदगी गुजारे। ये क्या कि हमारी तरह बाज़ारों में मारे मारे फिरते हो और रोज़ी के पीछे खून पसीना बहाते हो। किसी ने कहा, यमामा में एक आदमी है, नाम उसका रहमान है, वही तुमको ये सब चीज़ें सिखाता है। सुन लो, हम रहमान पर तो ईमान लाने से रहे, हमारे सामने आसमान पर चढ़ो और वहाँ से एक लेख लाओ जिसको हम पढ़ भी लेंगे। किसी ने कहा, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, उन्हीं को हम पूछते हैं। अब अगर अल्लाह और फरिश्तों को सामने ला खड़ा करो या आसमान को टुकड़े करके हम पर गिरा दो तो हम तुम पर ईमान लाएंगे। ज़रा हम भी तो देखें कैसी सज़ा और कैसा अज़ाब है जिसकी ये धमकियाँ देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक है मेरा रब, क्या मैं एक पैगंबर के सिवा और भी कुछ हूँ? अल्लाह ने फरमाया, बरकत वाली है वह ज़ात जो अगर चाहे तो आपको उससे भी अच्छी चीज़ दे दे, चाहे तो ऐसे बाग दे दे जिसके नीचे से नहरें जारी हों, और चाहे तो बहुत से महल दे दे। उन लोगों ने कहा, मुहम्मद, हमने तुम्हारे सामने कितनी बड़ी बातें रखी लेकिन तुमने एक न मानी। तुमने कितनी ही खामोशी से ख्वाहिशें की लेकिन तुमने सब ठुकरा दी। सुन लो, अब हम मजबूर हैं, अब हमें अधिकार है तुम्हारे साथ जैसा चाहें सलूक करें। याद रखो, हम तुम्हारी जान ही लेकर छोड़ेंगे, अब या तो तुम रहोगे या हम। अब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का फ़ैसला कर लिया, बिल्कुल आखिरी और पक्का फ़ैसला। लेकिन अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया गया हो तो अबू तालिब का क्या होगा? उनके तो कलेजे में आग लग जाएगी, और जहाँ वे बिगड़े सारे आले मुत्तलिब बिगड़ जाएंगे। यही लोग कुरैश के सरदार और सरकार हैं, इनके बाद क्या बनेगा? यह विचार आते ही उनका साहब जवाब दे गया और उनके सारे हौसले ठंडे हो गए। मगर हाँ, एक शक्ल है, कोई तरकीब की जाए कि मुहम्मद अबू तालिब की नज़र से गिर जाए, या कम से कम उसका दिल फीका हो जाए कि उसको कत्ल करें तो वो चुप रहे। बहुत सोचा, कई दिन तक सोचा। आखिर उन नादानों की अक्ल ने मशवरा दिया, अबू तालिब के पास अपना एक जवान लेकर जाओ, जवान भी ऐसा कि ताकत और बहादुरी मशहूर हो और सौंदर्य जगत का भी सम्राट हो। उसे कहो कि अपने भतीजे को दे दें और उसकी जगह हम जवान को रख लें। सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात, सीरत सरवर आलम का ये हिस्सा यहीं तक, बाकी इंशाअल्लाह तबारक तआला आपकी खिदमत में कल पेश किया जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।